Very good morning, my dear viewers from across the world. You all would reckon with the fact because those who have been traveling all along with me on my unique bandwagon, I am very much on a historic journey. Today, I have just landed at this consecrated city of Bihar, capital city of Bihar, that is Patna, Patliputra. My dear viewers, the moment I say Patliputra, I instantly recall my very electrifying, intellectually electrifying conversation with the then ambassador of India in United Kingdom, Sri Yaswardhan Sinha ji, because after Bihar Divas 2018, where I was felicitated by the government of Bihar for bringing glory to the state for writing Yes, I Am Bihari, a globally popular book, I just got in touch with Sri Yaswardhan Sinha ji, just because yes, I needed to discuss with him on some important issues, and there Yaswardhan Sinha ji made certain very invaluable revelations to me. He said to me how his father, General S.K. Sinha, had petitioned the then Chief Minister Sri Nitish Kumar ji, of course, who happens to be an incumbent Chief Minister too, that let the name of Patna be changed to that of Patliputra, because this Patliputra had been the capital of Magadha Empire. And General S.K. Sinha had collected the overall signatures of 1 lakh people from across Patna for getting the name changed from Patna to that of Patliputra. My dear viewers, although the petition is still pending with us with the office of Chief Minister, but nevertheless it gives me a lot of excitement, because I just landed here at 2 days down, means at Patliputra, and of course a very important information to reveal. As in the case of being an author, you all would know the Living Legends of Mithila, the first book, pioneer book on living legends, and that too on Mithila. I had portrayed Madam Srimati Sarda Sinha ji as a great singer of Mithila, folklore singer from this Punya Bhumi of Mithila. This time as a singer who has devoted her entire life to singing all Maithili songs, Madam Ranjana, Srimati Ranjana Jhaji, of course, is a well-known name, and especially after Sarda Sinha, when I just flipped through the net to find out the list of the great singers from this Punya Bhumi of Mithila, I serendipitously stumbled upon the name of Madam Ranjana ji as the second most, the second largest singer or second most popular singer from the Punya Bhumi of Mithila, and consequently I have decided, I freezed on this particular decision to portray Madam Ranjana ji for my upcoming book, The Living Legends of Mithila. My dear viewers, you all would reckon with the fact how I kick-started that historic sort of odyssey or a journey wherein I had gone to Janakpur, because this book has started from Janakpur. Then I portrayed 6 very illustrious people from the land of Janakpur, including the Mahant of Janki Mandir. And then I went to Kathmandu to portray some more living legends from the Punya Bhumi of Mithila. Then again I went to Delhi. I stayed there for a few days, and today I am privileged to be closeted with that of one of the most popular singers after Sarda Sinha ji, that is Srimati Ranjana ji. And I am closeting with her, and she is going to be portrayed in the Living Legends of Mithila Part 2. So just engaging in an intellectual interaction with that of Madam Ranjana ji. Of course, being a Maithili singer, she would love to interact with me in Maithili. Just because this book happens to be a global book, I was trying to give an introduction in English for the understanding and comprehensibility of the global audience. But I'm engaging Ranjana ji, in a very intellectually electrifying conversation, definitely which is going to be in Maithili language. Madam, कनी अपने जे छे से पर अपनी बचपन कथा से शुरू भेले आ केना अपने के संगीत के प्रति रुचि आयल, एहि पर कनी प्रकाश डाले, कनी फिर से बचपन के तरफ जइयो अपने और याद करियो ओइ क्षण ओइ समय का, जे केना संगीत के प्रति एते रुझान भेल अपने का।
जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने के हम स्वागत करी, अभिनंदन करी जे अपने आई लायक हमरा बुझलिए कि हम ई पुस्तक में हमरो एकटा जीवनी आवे अपन। बहुत धन्यवाद अहाँ के। और हमर संगीत और हमर जीवन जे शुरुआत है अररिया जिला में हमर देवीगंज गांव में हमर जन्म भेल। माता श्रीमती शांति मिश्रा, पिता श्री भागवत मिश्र योगी। संगीत हमरा विरासत में मिलल, मुदा संगीत विरासत में हमरा लोक संगीत मिलल जे हम मिथिला के संगीत कह सकै छी। हमरा जे मिथिला में हम गबै छी वो विरासत में मिलल। मुदा हमर एकटा बचपन से ही रुझान रहे शास्त्रीय संगीत के। तो हमरा शास्त्रीय संगीत के जे प्रथम गुरु भेला पंडित योगेंद्र नारायण यादव, उनका पंडित योगेंद्र भारती के नाम से जानल जाए छे। और उनका से बहुत काफ़ी समय सीखे के मौका मिले। और उनकर बाद अगर हम सीखलिए तो बचपने में छोटे में रेडियो सुने के बेसी आदत छे हमरा। रेडियो में ही पद्म विभूषण किशोरी आमोदकर के हम सुनलिए जे हमरा बहुत हृदय तल के छूल के हुनकर गायन। तो तखने इच्छा भेले जे हुनका से हम सिखबै। मुदा हम एतेक सुदूर देहात में छलिए जे ई असंभव सनक बात छलिए। लोगो हंसै छलैए ई केना सिखतै, एतऽ तऽ गाँवमे रहै छै और बात करै छै महाराष्ट्र मुंबई के। लेकिन हमरा बुझाइए कि अगर मन में लगन होए तो सब किछु भेटै छै। हमरो भेटल, हमरो सौभाग्य भेटल हुनका से किछु सीखै के। बहुत लंबा समय नहीं, मुदा कुछ समय सीखे के मौका मिला। केना आपने की गेलिए बॉम्बे की? जी 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 अच्छा गेलिए। और बहुत बड़ा कहानी छै ओकर, अपने के बतेबै। और वो कहानी में बहुत राज समय जेते। ठीक है जी। और वह हम अपने कहली कि लगन होए, इच्छा होए तो परमात्मा पूरा करे छै, से हमर कहे के एकटा तो मन में छले जे हुनका से सीखी। मुदा हम हमेशा एकटा भाव रहे कि हम जे किछु गाबी वो एकटा अपन लगे कि हमर छिए, ओहिमे रंजना दिखे। कोशिश रहे बचपन से। तो हम 8वीं से ही अपन कंपोजिशंस, चाहे वो जहने हो, टूटले हो, फुटले हो, भांगले हो, मुदा हम करते रहलिए। ओकर हम हास्य भी, हास्यास्पद भी हमरा पर रहे लोग कि ई किछु से किछु गबै छै। मुदा वो रहले हमर अपन शौक कि हम किछो गाबी तो अपन कंपोजिशन धुन अपन रहे, तो वो सब करते रहलिए। और अपने के याद दिया जब अपने पहिल कोन एहि तरह के कंपोजिशन के लिए? क्या तो ओ में एकटा बहुत एक्साइटमेंट छले, पहिल अपने के रचना छला, एकटा हृदय में एकटा बहुत तरह के एक्साइटमेंट लोग करे छै। तो याद दिया जो कोन तरह के रचना अपने के प्रथम छले? प्रथम के तो ओते ध्यान नहीं है, मुदा एकटा गीत छले जे हमरा मैट्रिक में जखन छलिए हम, तो हमरा स्कूल में कहल के जे सिर्फ तुम्ही को चुना गया है, अब तुम फर्स्ट ला के दिखाओ प्राइज। तो हम कहली हे भगवान हम की गेबै जे हमरा फर्स्ट मिलते। हमरा तो बुझल नहीं रहे हम गेबै की जे फर्स्ट मिलते। हम अहिना सुतल छलिए, तो हम अहिना सोच में सुतलिए अब हम की गेबै जे हमरा फर्स्ट मिलते। तो सुतले में नहीं हो छै सपना टाइप के, तो हमरा एकटा धुन सपना में एलै जे हे राम, तो ओकर धुन सुनाबै छी हम। तो ओहि में जुटैत गेलै ओ धुन जे कबीर दास के भजन छै। मन चंचल चल राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ये जो धुन छले ना एकदम सपना में हम हमरा लगे 2-2:30 बजे थे रात, और दो दिन बाद गेबाक छले। तो हमरा एहना धुन, एहना गीत और धुन सपना में सुने ले। तो हम उठलिए और
हारमोनियम निकाल लिया अपन और शुरू हो लिए धुन मतलब इतनी ध्यान रहे ध्यान इतनी रहे गेलिए तो पूरा गाना सपना में पर हमरा इतनी ध्यान रहे पर ई गाना भी भेट गेले हमरा ये वो किताब में कबीरदास जी के भजन तो हे राम कहकर ये सिर्फ हे राम होना ध्यान रहे ओहिमे जोड़ दिलिए ई सब और अपने के बताबी कि ई गाना जखन हम गेलिए वो जे होइ छै 15 अगस्त के कार्यक्रम जेमे स्कूल के तरफ से हमरा तो नीचा से वंस मोर के क्लैपिंग के साथ कि वह दोबारा गाना लोग दोबारा सुनल के और फर्स्ट प्राइज तो मिलबे के तो वो अहाँके ई छै अहाँके 1993 के बाद तो 93 में हम मैट्रिक केने छलिए वही साल की कहे छै एक साल पहले यानी कि 92 में ई भेल छलै मैट्रिक में रहिए हम और अहाँके अहिने बहुत रास अब आप एखन अपने के बताबी कि मैक्सिमम गीत जे हम गज़ल गीत या लोक संगीत में भी जे लोक संगीत जे पारंपरिक छै वो तो छेबे करे मुदा बहुत रास एहन गीत छै जकर कंपोजिशन नहीं छै जेना विद्यापति गीत के भी बहुत रास कंपोजिशन वो जे गिनल चुनल किछ 10टा 15टा 20टा गीत छै बस उतना के सिवा और नहीं छै तो वो सब जे गीत छै विलुप्त भ रहल छै लोग नहीं गाबि रहल छै ओकरा सबके कोशिश कऽ रहल छियै जे वो सब हम नया धुन में गाबि कऽ मतलब नया धुन में एखन जे अपने बताबी विद्यापति के गीत जे नया धुन के एकटा कोशिश के लिए हमारा पीएचडी भी विद्यापति और लक्ष्मीनाथ गोसाई पर छै हुनकर गीत पर जे शास्त्रीय संगीत लोक संगीत और सुगम संगीत हुनकर गीत में केना केना छै दस्तारा की स्वरलिपि और नवीन गीत उनमें ऐड केलिए पुराना जे छै छेबे करे नवीन गीत में एकटा ऐड जे केलिए अपने के सुनाबी पिया बिरहिन अति मलिन कौन जीव तेरे धने ध्यान नहीं पिया बिरहिन अति मलिन कौन जीव तेरे अज हुनाल बालम अज हुनाल बालम अब बिख पीऊ तेरे पिया बिरहिन अति मलिन कौन पंजीव तेरे ध्यान नहीं रहल तो ई गीत नवीन धुन में और बहुत रास मंच पर से हो गेलिए हम और गायक अपने जे छै से क्या साल से मैथिली गीत गाबि रहल छियै कते साल भऽ गेलै यादे नहीं हमरा तो बुझाइए जे हम बहुत छोट छलिए जखन से मंच पर आबि गेलिए किया तो बाबूजी गबै छलखिन हैं तो हमरा लो के सब जगह जाय छलखिन हमरा बाबूजी माँ कहै छथिन कि हम जखन 4 साल के रहिए तखन से मंचे पर छी अच्छा तो एटा अंदाज से जे छै से 25 साल 25 साल के ना हमरा 46 साल भेले जी आ हम 4 साल के अवस्था से गाबि रहल छी अहाँ जोड़ियो 42 साल भेले वाह 42 साल से हम गाबि रहल छियै जी मंच पर गाबि रहल छियै और मैथिली के साथ साथ हिंदी और अन्य भाषा सब गबै छियै कि तो देखियो संगीत कोनो भाषा के अंदर नहीं छै संगीत सर्वव्यापी छै जे भाषा में दऽ देबै ओ भाषा भऽ गेलै मुदा संगीत जे अगर केओ सीखे छै तो ओ भाषा विशेष नहीं छै अच्छा मैडम अपने के जेना घर में ओशो जी के बहुत हम प्रभाव देख रहल छी एते वो सामने में बहुत पैघ हुनकर फोटो छै अंदरो से ओशो जी के देखलिए तो ओशो जी के प्रति अपने एते माने एते जे अपने के एकटा एडमिरेशन य एते हुनकर प्रति जे भक्ति भावना य तकर पाछा की कारण छै दुनिया उनका जने छन जो लॉजिशियन छलखिन आर्गुमेंट बहुत बढ़िया करे छलखिन मगर एता अपने के कोन कारण छै माने एते ई चाहत के पीछा की पाछा की कोन कारण छै जी ओशो का हम बहुत 1996 से जाने छी जी 1996 में हमर बियाह भेल जी और श्री मनोज कुमार झा हमर पति भेला जी जे सहरसा जिला घर छै जी और ओ ओशो के सन्यासी छला अच्छा पहिने से जखन हमर विवाह बाबूजी फाइनल केला
जी तखन सबसे पहिने हमरा एकटा हम्म, किताब आनि कऽ देलक। जी ठीक छै, हम्म, हमरा ई नहि कहला कि तोहर बियाह भऽ रहल छै हम्म, किछो हम्म, एहन कोनो नहि। मुदा हमरा किताब देला, कहलक कि किताब पढ़ी। हम्म, किताब पढ़लिए, हम्म, हमरा कहलखिन केहन लगलो, हम्म, बोले बढ़िया लगले। हम्म, तऽ केहन बढ़िया, बोले बहुत बढ़िया। हम्म, तऽ ठीक छै, किताब लऽ लेलखिन। हम्म, तऽ बुझि गेलखिन जे एकरा बनि जेतै हुनका संगे। हम्म, तऽ फेर हमरा बादमे मालूम चललै कि तऽ हस्बैंड हमर छथिन सन्यासी, जे ओ किताब भेजबेने रहथिन पिताजी द्वारा, हम्म, जे हम पढ़िए जानिए ओशोके। हम्म, तऽ ओतऽसँ हम ओशोके जनलिए। जी, तऽ ओशोके जनलिए सिर्फ, हम्म, लेकिन जानना ही काफी नहीं होइ छै। तऽ ओकर बाद हम जखन बियाह भऽ गेलै तऽ जे अपने पतिदेव हमरा जतऽ ततऽ ध्यान शिविर सबमे लऽ जाय लगला, ओशोसँ परिचित करेला। और काफी साल बाद हमरा बुझाइए 96 में बियाह भेलै, हम 2003 में सन्यासी एलियै। अच्छा, तो 96 से लऽ कऽ 3 तक हम सिर्फ ओशो के जानलिए, बुझलिए, ध्यान केलिए। जी, सब मतलब एकटा होइ छै ने जे हुनका रचलिए बसलिए, एना नहीं जे केओ पकड़ा देलकै तो पकड़ि लेलिए, से बात नहीं छै। तऽ ओशो हमरा लेल एकटा की कहल जाय, जे एकटा संगीत में जे आध्यात्मिक गुण आने के प्रयास अगर क्यों केलथि है तो ओशो। अच्छा, संगीत बिना आध्यात्म के नहीं छै। जी, अगर आध्यात्म नहीं है संगीत में, तखन वो संगीत सिर्फ मनोरंजन के साधन भऽ जाइ छै। मुदा अगर हम ध्यान के साथ संगीत करै छियै, तखन हम वो संगीत सचमुच अध्यात्म बहुत बढ़िया। की ओर लगै My छै। dear viewers, here what Madam Ranjana ji says, it readily comes to your mind the very historic and very important observation of that of Michael Jackson, the one of the greatest, rather I would say the greatest dancer the world had seen for almost in decades together. He too said that I am trying to reach the divine through my dancing. What Madam says, she corroborates, the statement, rather she vindicates the statement of that of Michael Jackson by correlating his observation with that of the thought process of Osho, because Osho too tried to correlate the gravity of songs, along with that of spirituality. That adds value as well as ethics to the entire area or specialization of singing or songs. Very good, बहुत बढ़िया। तो मैडम यहाँ तो ई ओशो जी के हम बुझ गेलिए अपने का। जी, आप जे छै मैडम अपने के जे छै से मैथिली गायन के जे बुझलिए अपने के 42 साल के अनुभव है, बहुत अपने के जे छै से इहो हम कहे गर्व भऽ रहल यऽ जे अपने जे छै से मान लिअ अखन मोटा मोटी हम देख रहल छी पूरा मिथिला गायन क्षेत्र में अपने के दोसर स्थान यऽ शारदा जी के बाद, जे देख रहल छी सब जगह। तो अपने एकटा ई बात पर कनी फोकस करियो जे मैथिली गाना सब केना के शुरुआत भेलै, कोन कोन गाना अपने के बेस्ट गाना के रूप में देश दुनिया जानलखिन, एहि पर कनी प्रकाश दियो मैडम। देखियो, जेना बाबूजी सिखबै छलखिन मैथिली गाना सब, तऽ शुरुआत जे भेलै हमर लोक संगीत में बहुत रास गीत नचारी विद्यापति के गीत, तो बहुत रास गीत गेलिए, मतलब हमरा बुझाइए कि जोड़ल नहीं है कते जी, मुदा हम गबैत रहलिए बचपन से ही। कुछ गीत एहन भेलै जे बचपन से गाबैत गाबैत ओ बहुत ज़्यादा प्रचार में एलै। आब एखन अहाँ के मिथिला के एहन कोई भी कलाकार नहीं मिलत जे ओ नहीं गबै छै ओ सब गीत, जे कि हम बचपन से गाबैत एलिए ओकरा। जेना अहाँ के एकटा गीत छै जे विवाह गीत, जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है, अहाँ सुनने हेबै। और जी सब केओ गबै छै, मुदा हमरा बुझाइए जे हम कम से कम एकरा एहि गीत के 35 बरस से गबै छी। जी कनी गबियो दर्शक जी जरूर। जेहने किशोरी मोरी तेहने
किशोर हे जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर हे विधना लगाउल जोड़ी केहन बेजोड़ हे विधना लगाउल जोड़ी। इस स्नेहलता जी के लिखल है और स्नेहलता जी यहाँ के समस्तीपुर में तरोड़ी एकटा गाँव छै जतऽ के ओ बहुत ही की कहल जाए विद्यापति के बाद अगर केओ एहन कवि भेला तऽ ओ भेला लक्ष्मीनाथ गोसाई और लक्ष्मीनाथ गोसाई के बाद केओ कवि भेला जे एकदम मिथिला के हृदय में बसै छै तऽ ओ छै स्नेहलता जी। अखन छथिन ओ आब नहीं छथिन। My dear viewers, well, Madam was trying to recite or trying to sing those stanzas as what she says that had been penned by that of Madam Snehlata ji, late Snehlata ji, because she is no more. Oh, acha, acha. Okay, so I'm sorry, since he is no more now. But what she was trying to articulate, it readily comes to my mind, and I would like to inform to all my viewers across the world. I kick-started my journey from right from Janakpur, because I consider Janakpur to be the citadel of Mithila. And given the fact that there is a corridor is going to be established between Ayodhya to that of Janakpur, so the focus or emphasis is given on Janakpur. As Madam had said, just she began singing, moment she uttered the very important or relevant of Kishori ji, it came to my knowledge, rather it was a revelation to me in Janakpur, and across Nepal, Mother Sita ji is being referred to as Kishori ji. And since then, I too take immense pride, in addressing Mother Sita as Kishori ji. So that was the song all about, referring to Kishori ji and Lord Sri Ram, that both were very, very, rather the couples made for each other, and it was the providential decree that both were to get married and both were to, become spouses. It was a providential decree. Madam, आप जे छै बहुत इम्पोर्टेंट बात ई भए रहल अछि, अपने जे छै से एकटा बड़ा सुंदर गीत हमरा लग में गेलिए प्रोग्राम से पहले और हमरा बड़ा छूलक जे अपने कहले ई गीत अपने के बहुत पॉपुलर गीत भेले जे बालक क्या कोनो में छले शब्द, तो ओहो कनी हमरा सब के कनी ओके बारे में कहे तोहर कनी गीत सुना दियो। महाकवि विद्यापति जी एकटा बेमेल विवाह पर लिखलखिन है। अच्छा, ये बहुत ही कारुणिक छै जे लिखलखिन, अहाँ के सुना दी। हम चाहब एकटा आग्रह जे अपने एकरा इंग्लिश अनुवाद भी करिए ताकि वो और भी श्रोता तक पहुंचे जी। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकलो, कौन तप चुकलो, भेलो जननी गे, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकलो, भेलो जननी गे, पिया मोरा बालक। जी, गीत तो बहुत लंबा है। दर्शक अगर सुने के मन हो तो हमारी यूट्यूब चैनल पर है, अहाँ सुन सके छी पिया मोरा बालक। एकर मतलब कनी बुझा देती दर्शक बिंद के कहते एता जे छै कोन तप चुकलो भेलो जननी के, तकर मतलब कि ओ तरुणी कहे चाहे छथिन जब मतलब बहुत जल्दी माता बन गेलो। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, पिया मोरा बालक एक मतलब ई पर हमरो रिसर्च कनी चल रहल रहे त कनी पता चले किताब सब सही कि एकटा एहन जगह छै अपना जगह में पहले छले है, एखन छै कि नहीं विराजमान नहीं पता, वही समय में छले है जतऽ कि लड़की पैघ और लड़का छोट में बियाह होय छले। अच्छा अच्छा, मतलब अते छोट छै लड़का कि गोदी में ओकरा
अच्छा अच्छा पिया ले ले गोद के चलली बाजार गे, हटिया के लोग पूछे के लागो तोहार गे। अच्छा नहीं मोर देवर की नहीं छोट भाई, पूर्व लिखल छल बालम हमार गे। अच्छा तऽ कहै छथिन कि पिया हमर बालक छै, हम की छी तरुणी यानी जवान छी, आ कोन एहन तप केलहुँ जननी मतलब खाली माता नहि होइ छै, स्त्री भी होइ छै। तऽ कोन एहन तप में चूक भेल जे हम स्त्री के रूप में हमर जन्म भेल। तऽ ई कहऽ चाहै छथिन महाकवि विद्यापति जी। तऽ ई छलैए ओहि टाइम में जेना हमरा किछु किताब में भेटल जी और एकर बारे में हम खुदे खोजि रहल छी जे विद्यापति लिखलखिन तऽ किछु तऽ बात हेतै एहिमे। तऽ ई बेमेल विवाह पर एकटा व्यंग छै जी जी। अतः पूरा लाइन जे छै ने जे कहै छथिन बाट रे बटोहिया कि तूहू हमर भाई रे, हमरो समाद नैहर ने न जाए रे, कही हुन बाबा से कीनत धेनु गाय रे, दूधवा पियाए के पुस्ता जमाए रे। Fantastic, my dear viewers. What Madam was trying to articulate, she was trying to sum up the entirety of song, in the words of frugality. But what she is very much, she is very much specific or emphatic about is a sort of asymmetric marriage about which the great poet, the poet of poets, Vidyapati ji had envisaged. Maybe the scenario might be prevailing at that point in time. What she is trying to point out there, about the sort of asymmetric marriage where the husband used to be younger than that of his wife, and the scenario then Vidyapati ji was envisaging in that very poem, and about the few stanzas which Madam was Madam tried to sing, and she tried to correlate the sort of scenario which prevailed at the time of Vidyapati ji. Because if he at all had penned such stanzas, naturally he must have got inspiration from the social environment which prevailed then. मैडम आप जे छै अपने बहुत सुंदर जे छै बड़ा सुंदर ई कविता बने अपने गीत पर गेलिए, और जे छै से मान लियो मैडम अपने जे अखन तक अपने कते गीत के रचना के कते गीत गाबि चुकल छियै? सर हमरा मोन जते ये हमरा जे 500-600 गाना गेलिए, जाहिमे कुछ विद्यापति के गीत छनि, लक्ष्मीनाथ गोसाई के गीत छनि, स्नेहलता जी के गीत छनि, आ पारंपरिक गीत सब छै जे आन आन कवि की होइ छै ने पारंपरिक गीत में ने कवि के नाम रहे नहीं छै, तऽ के लिखलकै ई पारंपरिकता में गौण छलिए। मुदा आब धीरे धीरे सामने आबि रहल छै जे वो पारंपरिक गीत लिखलकै की, आखिर कवि जे लिख के चलि गेलै हुनकर पारंपरिक गीत भऽ के वो मतलब की कहल जाए हेरा गेलै हुनकर नाम जी। मुदा हम सब चाहे छियै कि हुनकर नाम फेर से सामने आवे, के लिखलकै। तऽ स्नेहलता जी के गीत भी अहिना भेलै जे बहुत लोग हुनकर जे स्नेहलता छाँटि के गाबि देलकै। हाँ, ताहिसँ की भेलै जे स्नेहलता जी के गाना सामने नहीं आते रहे। ओहिना विद्यापति के भी बहुत रास एहन गीत छै अहाँके जे विद्यापति नाम से नहीं छै, या एहनो छै जे केओ सामान्य आदमी लिख देलकै और विद्यापति में जोड़ देलकै। ठीक छै, वही अहाँके गीत भेटत जाहिमे कि वो जे विद्यापति के शब्दावली छलिए वहाँ के नहीं भेटत ओ गीत में। मैडम एक्चुअली हमर सबक दर्शक वृंद के या मैथिल जे लोग सब छै विद्यापति तो हुनकर सबके जवाने पढ़ै छथिन, मगर अपने जे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के चर्चा करिए तऽ किछु हुनकर लिखल गीत जे अपने गेलिए ताहि विषय में हम कोन बहुत बढ़िया हिट भेलै ओहि विषय में हमरा सबके दर्शक वृंद के जरूर बताउ। हाँ, जरूर। हुनकर लक्ष्मीनाथ गोसाई के जे गीत छनि ने वो कहल जाए कि जे ब्रज भाषा के तरह छनि हुनकर, और किछु गीत वो मैथिली में लिखलक। अच्छा जी। तऽ एकटा गीत छै, मतलब गीत हजारों हुनकर छनि, मुदा जे हम गीत गबै छी ओहिमे से एकटा गीत अहाँ सुनाबी। मोहन बिनु कौन चरे है गैया, मोहन बिनु कौन चरे है गैया, कौन चरे है गैया, मोहन बिनु कौन चरे है गैया, मोहन बिनु कौन चरे है गैया। नहीं बलदेव
नहीं मनमोहन, नहीं बलदेव, नहीं मनमोहन। रोवही यशोदा मैया, मोहन बिनु कौन चरई है गैया। लक्ष्मीनाथ गोसाई जी कहे चाहे छथिन कि जखन भगवान कृष्ण घर से केम्हरो चलि गेलखिन हैं, तखन के गाय के चरेतै से ये से तो स्पष्ट भऽ जाइ जी, छै। जी, जी। मगर मैथिली में जे गोसाई जी कोन गेल लिखलखिन हैं से अपने जे हाँ, गेलिए, हाँ, जी, ई जी। दर्शक बिंदु कनि दूटा कम से कम दूटा बढ़िया लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के, किया लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के बारे में मैथिलो सब नहीं जानै छथिन। जी, जी, जी। विद्यापति तो सबके जवान पर वास करै छथिन, दिल में वास करै छथिन। हाँ, जेना एकटा हम एहिठाम एकटा उदाहरण बताबऽ चाहै छी जी। जे ई परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के लिखल छनि, मुदा सबके भान छै जे ई विद्यापति के लिखल छै। अच्छा। हम वो सुनाबऽ चाहै छी। जरूर जरूर। हे हर हमर, हे हर हमर करहु प्रतिपाला, हे हर हमर करहु प्रतिपाला। कौन विधि पढ़लहु, कौन विधि पढ़लहु माया जाल, हे हर हमर। ई बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई के लिखल छनि, मुदा बेसी लोग बुझै छथि कि विद्यापति के लिखल छै। अच्छा जखन हम रिसर्च केलहुँ जी। तखन हमरा मालूम चलल कि ई हिनकर गीत लिखल छै, ई मैथिली में छै। अच्छा। और एहन और भी छै। बहुत जी, बढ़िया। जी, जी, तो जी। मैडम अपने जे 600 करीब गीत लिखलिए मैथिली पर, लिखलिए नहीं सर, सॉरी गेलिए, आई एम सॉरी, जी। मतलब और आपने जेना खाली मैथिली नहीं सर, हम हिंदियो गबै छियै, जी। गजल गीत भी गबै तो अपने जे छै से अपने के अखन तक के बेस्ट मैथिली गीत अर्थात पॉपुलर जे बहुत गीत भेल हँ मैथिली, हाँ, हाँ। और हिंदी में जे पॉपुलर बहुत भेल, हाँ, हाँ। ई दुनू गीत पर हमर सब दर्शक के बताबियौ। जी पॉपुलर तो ई पिया मोरा बालक भेलै, और जी। जेहने किशोरी भेलै, एकटा और बहुत पॉपुलर भेलै जी। गे माई चंद्रमुखी सन गोरी हमर छथि, सूर्य सन करी तो जमाई। गे माई चंद्रमुखी सन गोरी हमर छथि, सूर्य सन करी तो जमाई। सूर्य सन करी तो जमाई, गे माई सूर्य सन करी तो जमाई। गे माई चंद्रमुखी सन गोरी हमर छथि, सूर्य सन करी तो जमाई। ये काफी लोग पसंद करते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। जी, जी। मैडम तो आप जे छै से ई तो बड्ड सुंदर अपने के माय डियर व्यूअर्स, I could hear a few songs as you all heard. I consider Madam, she has such a mellifluous, such melodious voice that in fact, it is a matter of time. She has already made a huge, a very good name, very, just already carved out a niche for herself, just not only in the Maithili, Maithili songs, but even she has transcended beyond that particular sphere, and she extended her influence even among Hindi, in Hindi songs, or among the listeners of Hindi music or Hindi songs. So I would like to request Madam, अपने से रिक्वेस्ट किया जे कनी जना अपने हिंदी मैथिली के सुंदर गेलिए, एकटा हिंदियो में जे अपने जरूर प्लीज। बहुत रास हिंदी गजल प्रोग्राम केले छियै जी। जे हमर लिखल तऽ छै शायर के, पर कंपोजिशन हमर अपन रहै छै धुन वाला। जी। जी। एकटा छथिन प्रोफेसर एहसान शाह, हुनकर लिखल छै एकटा सुर्ख नाजुक गुलाब सा चेहरा, सुर्ख नाजुक गुलाब सा चेहरा, कितना दिलकश है आपका चेहरा।
सुर्ख नाजुक गुलाब सा चेहरा, कितना दिलकश है आपका चेहरा। आ ले लेटा अही गजल में से शेर अर्ज करा चाहे आ का देख कर आ से मिल के जे लागल। जख्म खाकर जो मुस्कुराता था, अपने लेल छै। जख्म खाकर जो मुस्कुराता था, शहर में देखा एक नया चेहरा, शहर में देखा एक नया चेहरा। तो ये जे गज़ल है बहुत पॉपुलर भेलै जी। लोग बहुत चाव से सुनै छथिन, यूट्यूब पर छेबो करे। Actually, बहुत बढ़िया मैडम। Madams, actually the very connotation or significance of the song that she sang, just before I began speaking to all my audience, all my viewers, it talks about the sense of stoicism, a sense of apathy to joy and sorrow of life. One should take it indifferently, whether it is a bounty of joy or it is means an avalanche of sorrow. Whatever comes your way, you should take it just in a very apathetic way, just with the sense of stoicism. That what was the significance of her song, that should it teaches us the humanity, that we all should live our life in a very apathetic way. Neither the bounty of joy should overwhelm us, nor the avalanche of sorrow should underwhelm us. We should be indifferent to both. Fantastic. Madam, अपने जे छै से अपने 600 गीत करीब गेलिए और आप अपने सबके समयो इंटरव्यू के कम रहे छे, अपने जाने छिए ओइमे बहुत किछ अपने कहलिए बारे में। अपने का माय डियर व्यूअर्स, सी द डिवाइन कोइंसिडेंस। टुडे इट हैपेंस टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लता मंगेशकर जी, and see the divine coincidence. I am sitting with the Lata Mangeshkar of Mithila. She has all sort of attributes which certainly will go on making her as Lata Mangeshkar, not only of Mithila. My dear viewers, indeed today, as I already announced and informed to all the global community about about today's occasion being very, very auspicious, inasmuch as it happens to be the birth anniversary of the Nightingale of India, that is Lata Mangeshkar ji. I recall in this very context, her immortal song, that मेरी आवाज ही पहचान है, सब कुछ नाम भूल जाएगा मगर अब मेरी आवाज ही पहचान है. Likewise, I do recall a very important observation of that of Ruskin Bond, Padma Bhushan, great writer Ruskin Bond, who says that a writer's name itself carries his overall brand value. So for a writer, his name, his very name is magical enough, in as much as the very identity or very voice identity of that of a singer is an immortal imprimatur of that of a singer. As Lataji had left behind her priceless heritage for the singers down the generations to follow in her glorious footsteps, I, being a senior or elder to her, to Madam Ranjana ji, I extend my best wishes as well as the blessings upon her, that she also should be, in the very near future, she should rise up to, up to, I wouldn't say her level because it wouldn't befit us now, but nevertheless it should be a Lata Mangeshkar of Mithila. That is my blessings to her. Madam, अपने जे एतेक सुंदर बात आ एतेक बढ़िया अपने के आवाज है, और ये बात हमरा कहे बड़ा गौरव महसूस होइए जे अपने, चूँकि हम अपने दोसर स्थान पर अखन छिए मिथिला में, शारदा जी के बाद जिनका हम पहिल लिविंग लीजेंड्स में जिनका हम लेलिए, हम बहुत किछु सोचिए कि अपने लग में तो जे हम कहे छी से कोनो हवा वाला बात नहीं कहे छी, अपने के दोसर स्थान है मिथिला भूमि में गायिका के रूप में अछि. अब एकटा जे छै अपने के लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिला पार्ट 2 जे आबि रहल छै तकर गौरव अपने बढ़ेबे और 24 गोटा के साथ.
तो अपने एक मैसेज जे छे से पूरा मैथिल वासी के दियो जे गाना जे मिथिला भाषा छे वो कोन तरह से प्रेरणादायक भ सकै छै आ भ रहल छै और लोग सब अपन घर में जेना हिंदी बजै छथिन अंग्रेजी के बेसी माने बजै छथिन ओने बाइज के अपन भाषा अपन बोली बजथिन के तो मैथिल से स्वीट भाषा नहीं कोनो छै लोग सब जब मैथिल में तमसा जाए छै तो मैथिल सब की करै छथिन हिंदी बाजै लगै छथिन गाइड तैर मुँह से निकाले ना तो एतेक स्वीट भाषा और अपने के एतेक स्वीट वॉइस देखिए एतेक सुंदर गाना तो केना मैथिल से मैथिली गाना विश्व मंच पर एक मानि हेराल्ड करे अपन अराइवल विश्व मंच पर मैथिली गाना के जय जयकार होए जय जयकार होए ताहि संबंध में अपने कौन तरह के आह्वान करबे मैथिल कम्युनिटी का प्लीज करियो मैडम। जी बहुत धन्यवाद अहाँ के। हम आह्वान की करबे, हम प्रार्थना करबे सब एखन जे कलाकार सब छथिन हुनका सबके प्रार्थना अछि हमर कि ओ जे अपन जे पारंपरिक मिथिला के धुन छै ओ वेस्टर्न तरफ नहीं जाए, तखने ई जे स्वीटनेस छै बरकरार रहते। और अपने जे कहलिए घर में नहीं बजे छै कियो, ई बात सही छै। देखियो इंग्लिश बजनाइ बहुत जरूरी छै, किया तऽ अहाँके वर्ल्ड वाइड अहाँ जेबै पूरा दुनिया देश दुनिया घूमबै तऽ इंग्लिश बजनाइ जरूरी छै, मुदा अपन मातृभाषा के सम्मान करनाइ जते माय के हम सम्मान करिए ओते अपन भाषा के अपन मातृभाषा के सम्मान करिए वो बहुत जरूरी छै। तो ओकरा लेल हम प्रार्थना करै छियनि सब गार्जियन से माय बाप से कि अपन बच्चा संगे मैथिलियो बाजियो तखन ओ सीखतै, अन्यथा ओ सीखे नहीं पेतै। एक तो ई बात, दोसर बात सब कलाकार सब आग्रह संगे जे अपने जे जे क्यों मैथिली संगीत के संगे जे वेस्टर्न साज वेस्टर्न धुन वेस्टर्न शैली के प्रयोग जे कऽ रहल छथिन ओ मिथिला संगीत के बहुत आगू नहीं लऽ जेतै। मिथिला संगीत अपने तरह से जे हुनकर स्वाभाविक गुण छै, स्वाभाविक व्यवहार छै, स्वाभाविक ओकर जे अपन गुण के तहत वो आगू बढ़ते, ओकर गुण के बरकरार रखैत आगू लऽ जाओ तखन वो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आगू बढ़ते रहते और ये अपन संगीत अपन जे भाषा छे ओकर विकास प्रचार और संरक्षण करते। बहुत बढ़िया। My dear viewers, indeed you all heard with rapt attention, what Madam had to say about Mithila and Maithili, especially in the context of Maithili being the sweetest language. My dear viewers, I would like to say we have a scholarly legacy, and that scholarly legacy we have inherited since time immemorial. I would like to remind my viewers that Maithili, Mithila had produced the galaxy of talents, the galaxy of scholars, and the first knower of Brahma, that is Yagyaval, was born in the sacred land of Mithila. That was famous scholarly battle between that of Yagyaval and Gargi bears the living testimony of the scholarly excellence of that of Mithila. My dear viewers, centuries down the line, Mithila had produced a great scholar like Sankara Mishra, who despite being of 5 years age, nonetheless he had the prowess to describe the universe. When he had entered into the court of Darbhanga and beholding a child entering into the court of Darbhanga, all the court members, they just mocked at him. And then what he said is a revelation to the global community and bears a living testimony of Mithila's scholarly brilliance and scholarly glory. He said, Baloham Jagdanandam Name Bala Saraswati Apurane Panchame Barse Barnayam Jagatriyam. Even though I may be of 5 years old, don't go by my infancy in terms of my physical evolution, but I do have the prowess to describe the universe. That is the glory I, Vivekananda Jha, author of the Living Legends of Mithila Part 1, and on the verge of producing another, that is second volume of Living Legends of Mithila Part 2, I am just carrying forward the same legacy, the priceless legacy, and
an inextinguishable glory of that of scholarly glory of that of Mithila by writing the second volume of Living Legends of Mithila, and definitely I do have a plan, of course by the grace of Mother Saraswati and Mother Kishori ji, because Mother Saraswati's large image is very much in front of me, touching her divine feet. I take a vow which I've already taken. I rather reassert my own resolution that I am going to write 3 volumes of the Living Legends of Mithila, just to sustain the glory, the scholarly glory of Mithila. And we do have a profusion of talents, as you have seen our Madam Ranjana ji, who is going to be portrayed in the upcoming book Living Legends of Mithila. They all are the palanquin bearers of that glory, priceless glory of Mithila. With these words, I thank Madam Ranjana ji for giving me her invaluable time, and again I greet all my Maithil brethren straddling India, Nepal and across the globe. Just wait for just 1 or 2 months, because this book is going to be launched in Vivah Panchami in Janakpur, from where I'll be heralding the arrival of the Living Legends of Mithila Part 2 for glorification of Mithila as a Punya Bhumi, which the entire global community will salute, because it is a matter of the glory of knowing Brahma. Yagyabal was the first rishi or saint or seer who knew about Brahma. That was the glory of Mithila, glory of Yagyabal, and we all are carrying forward that glory. Thanks to all my viewers, thanks to Madam, thanks a lot. बहुत बहुत